پاکستان اور چین کے میڈیکل ٹورزم کو فروغ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ طبی سیاحت کے فروغ کے لیے ماہرین کی ایک بڑی تعداد درکار ہوتی ہے جو صنعت کے تمام سطحوں کو سمجھتے ہیں۔ پاکستان کو پھلوں کی ٹوکری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں مشہور آم اور مالٹے کے علاوہ پاکستان اعلیٰ معیار کے امرود بھی اگاتا ہے۔ پاکستانی ملازمین کو جس چیز پر فخر ہے وہ محض وہ انعام نہیں تھا جو انہیں ان کے کام کے لیے ملا ہے۔ وہ جس ونڈ پاور پروجیکٹ میں مصروف ہیں اس نے پاکستان میں بجلی کی فراہمی اور لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ چین اور پاکستان کی بین الاقوامی طبی میدان میں ہمیشہ بڑی مانگ رہی ہے۔ چین کی میڈیکل انڈسٹری عروج پر ہے اور عالمی معیار کی ہے۔ اس وقت پاکستان کی آبادی 216 ملین کے قریب ہے۔ اتنی بڑی آبادی کے لیے بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ترجیحی پالیسیاں بنانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے اس مقصد کے حصول کے لیے چین کو سرمایہ کاری اور طبی معلومات کے تبادلے کی سہولیات فراہم کی ہیں۔ سرحد پار طب کی ترقی میں چین اور پاکستان کو کن مشکلات کا سامنا ہے، کن علاقوں میں تعاون کے زیادہ امکانات موجود ہوں گے، آئیے مل کر ایک نظر ڈالیں۔ چین اور پاکستان کے لیے مریضوں اور ان کی بیماریوں کے متعلق تبادلہ کرنا، کووڈ 19 کی وبا، کینسر، ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر اور دیگر بیماریوں سے نمٹنے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرنا ضروری ہے جو علاقائی چیلنجز خوراک، طرز زندگی اور ماحولیاتی عوامل کی وجہ سے ہیں۔ ایسا دنیا کے دیگر حصوں میں نہیں کیا جا سکتا۔ کووڈ 19 پاک چین طبی تعاون کی ضرورت پر زور دیتا رہتا ہے، جبکہ اس حوالے سے مبشر احمد بھٹی کی کوشش بہت پہلے سے شروع ہوئی تھی۔ میں 2011 میں ڈاکٹر احمد بھٹ کو بیجنگ میں ملا اور ہم بین الاقوامی تعاون کے اس ارادے کے نتیجے پر پہنچے کہ پاکستان جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے مریضوں کو علاج کے لیے بیجنگ ینخوا ہسپتال بھیج سکتا ہے۔ میرے خیال میں بہت سی بیماریاں ہیں جن کا علاج چین جین تھیراپی کے ذریعے کر سکتا ہے۔ میں کئی بار چین جا چکا ہوں اور میں نے دیکھا کہ بہت سارے مریضوں کو اس سے فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ میں نے بہت سے پاکستانی مریضوں کو دوسرے ممالک کے بجائے علاج کے لیے چین جانے کی ترغیب دی ہے۔ بہت سارے مریض ایسے ہیں جنہیں میں نے چین بھیجا، ان میں خاص طور پر کینسر، جگر کی بیماری اور گردے فیل ہونے والے مریض شامل تھے۔ چین پہلا ملک ہے جس نے جین میڈیسن کو ایڈوانس سٹیج کینسر کے علاج کے لیے استعمال کیا۔ میں نے چین میں کئی پاکستانی مریضوں کا علاج کیا۔ ایک بچہ دانی کے کینسر کی مریضہ تھی جو 2 بار چین آئی۔ چینی ادویات اور ہائپر تھرمیا کے ساتھ جین تھیراپی کی دوائیاں استعمال کرنے کے بعد اس کے استصفائے شکمی اور کینسر سیل کو اچھی طرح کنٹرول کیا گیا۔ وہ بہت دبلی پتلی تھی اور اس کے وزن میں تیزی سے کمی واقع ہو رہی تھی۔ علاج کے بعد آہستہ آہستہ اس کا وزن بڑھنے لگا۔ فی الحال عالمی میڈیکل ٹورزم انڈسٹری کی مالیت 700 بلین امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے۔ میڈیکل ٹورزم پاکستان اور چین کے لیے اگلے مرحلے میں ترقی اور تعاون کے لیے ایک ممکنہ صنعت ہو سکتی ہے۔ پاکستان اور چین کے میڈیکل ٹورزم کو فروغ دینے کی اشد ضرورت ہے، جبکہ پاکستانی عوام کو اب طبی علاج کے لیے چین جانے کے لیے چیلنجز درپیش ہیں۔ چینی سفارت خانوں کو ایک پلیٹ فارم بنانا چاہیے، جیسے سفارت خانے میں ایک ڈیسک ہو جو صرف مریضوں کی درخواستوں کو قبول کرے۔ وہ چین کے ہوائی اڈوں اور کسی دوسرے بڑے شہر کے ہوائی اڈوں میں بھی ایک ڈیسک قائم کر سکتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو ہسپتال جانے اور ان کے علاج کو مناسب طریقے سے انجام دینے میں مدد اور سہولت فراہم کر سکیں۔ چین میں چند لوگ طبی سیاحت پر توجہ دیتے ہیں۔ چین کے کچھ ہسپتال جیسے پیکنگ یونین میڈیکل کالج ہسپتال اور چائنا جاپان فرینڈشپ ہسپتال بین الاقوامی طبی خدمات مہیا کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله बशमूल तिबी माहिरीन और तकनीकी अमले और अमली तजर्बा करने वाली टीमें आखिरकार एक निज़ाम बनाने के लिए मुआवन कवानीन की भी ज़रूरत होती है। कई ममालिक तिब्बी सयाहती वीज़े फराहम करते हैं। इस किस्म के वीज़े की खासियत ये है कि इसकी मुद्दत 5 से 10 साल तक है ताकि इसे तवील मुद्दती इलाज के लिए आसान बनाया जा सके। जब वबा ख़त्म हो जाए तो हुकूमती सतह पर तकनीकी जिद्दत में तिब्बी ताउन को फ़रोग़ देने की कोशिश की जानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीनी टेक्नोलॉजीज़ हमारे पाकिस्तानी दोस्तों को फ़ायदा पहुँचाएगी और फिर बेल्ट एंड रोड से मुंसलिक दूसरे ममालिक तक इसे फैलाया जाएगा। नाजरीन, इस मौजू पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ चाइना पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन फाउंडेशन। सबसे पहले आप जरा बताइए, तो आपके ख्याल में सरहद पार द्वीप के मैदान में चीन और पाकिस्तान के अपने अपने क्या एडवांटेजेस हैं? पिछले गुज़श्ता 15 सालों में मैंने देखा कि चाइना की मेडिकल यूनिवर्सिटीज और चाइना की टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी और टेलीमेडिसिन में बहुत ज्यादा काम हुआ है। और चाइना की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स जो हैं वो दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज और हॉस्पिटल्स में शामिल हो चुके हैं। और जरूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ज्यादा से ज्यादा तिब्बी तबादला ख्याल किए जाए। और क्योंकि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी इस हद तक तरक्की नहीं कर सकी और पाकिस्तान में तिब्बी सहूलियत का फुकदान होने की वजह से और आबादी का बहुत ज्यादा तनाव की वजह से, बढ़ाव की वजह से जरूरत इस अमर की है कि चाइना के पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान तिब के मामले में, तिब के मैदान में बहुत ज्यादा कोऑपरेशन के मौके मौजूद हैं। जी, तो आपकी मालूमात के मुताबिक इस वक्त चीन आने वाले जो पाकिस्तानी जो तिब्बी इलाज हासिल करने के लिए आने वाले पाकिस्तानी ज़्यादा हैं या नहीं? मेरी मालूमात के मुताबिक आपको मैं बताता चलूँ कि जो मेडिकल टूरिज्म है, ये जो टर्म यूज होती है, इसमें जो मेनली जो मकसद होता है कि आप सेहत की अच्छी सहूलियत हासिल करने के लिए दूसरे ममालिक का रुख करें। चाइना शुरू से ये एक ऐसा कंट्री रहा है जो अपने आप को बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करता, बहुत ज्यादा तशहीर नहीं करते अपने,
क्योंकि चाइना में दुनिया के टॉप क्लास हॉस्पिटल्स हैं, टॉप क्लास अदारे मौजूद हैं, टॉप क्लास प्रोफेसर्स हैं, टॉप क्लास टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन हमारे इस तरह के अदारे नहीं हैं जो अवाम और इन इंस्टीट्यूशन के दरमियान रब्ता कायम कर सकें। उसके अलावा अवेयरनेस की कमी है, तिब्बी आगाही की कमी है। उस तरह के अदारे होने चाहिए कि आम अवाम को तिब के बारे में मालूमात फराहम की जाए, और ये फराहम की जाए मालूमात कि चाइना में कौन कौन सी मरीज, कौन कौन सी बीमारियों का इलाज हो सकता है, क्योंकि चाइना में आजकल कैंसर, कीमोथेरेपी और एडवांस टेक्नोलॉजी, टेलीमेडिसिन और बिग डाटा पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, और इसमें चाइना में क्या कहते हैं जीन थेरेपी और इस तरह के बहुत सारे ट्रीटमेंट की जा रही हैं। तो जरूरत इस अमर की है कि ज्यादा से ज्यादा इन मुश्किलात का इजाला किया जाए, ज्यादा से ज्यादा अवाम और अवाम के दरमियान ताल्लुकात को फरोग दिया जाए। और इसके अलावा एक और बहुत ज्यादा मसला ये है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कोऑपरेशन हो रही है, बहुत ज्यादा इनके दरमियान मालूमात और एग्रीमेंट की जाती है, लेकिन लैंग्वेज बैरियर की वजह से, जुबान के जो है तबादला ख्याल ना होने की वजह से बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बहुत ज्यादा जरूरी है। चाइना ने बहुत ज्यादा तरक्की की है पिछले एक दहाई में, तो इसकी जरूरत इस समय की है कि चाइना और पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल किए जाएं, और सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किए जाए दोनों ममालिक के दरमियान। और इस एक मेरे ख्याल में चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए जिसमें एक पॉलिसी बनाई जाए जिसमें तिब की 5 साल या 10 साल एक पॉलिसी या प्लान बनाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे मुस्तफीद हो सकें। पाकिस्तान फलों की टोकरी के नाम से जाना जाता है। आम और माल्टे जैसे फल बड़ी मिकदार में बरामद होते हैं और खूब पज़ीराई हासिल करते हैं। पाकिस्तान में अमरूद की काश्त और फरोख्त की सूरत हाल क्या है, आइए हमारी रिपोर्ट देखिए। इसमें हम ये बीज लेते हैं, बीज को फिर हम बीज निकाल के अमरूद का, उसके साथ हम नर्सरी जो छोटी ना पनीरी उगाते हैं। पनीरी जब तकरीबन कोई 1 साल की पनीरी ये पौधा हो जाता है ना 2 से 2.5 फुट का, फिर हम इसको लगाते हैं बागों। अच्छी देखभाल करना इसलिए अहम है कि ये गर्म इलाकों में आमतौर पर होता है। अमरूद का आबाई इलाका जो मैक्सिको, वस्ती अमेरिका, कैरिबियन और शुमाली जनूबी अमेरिका है, पाकिस्तान के गर्म इलाकों में काश्त किया जाता है। और इधर हमारा क्रेशियम वाले में बाग है अमरूद का, तकरीबन 15 साल से हम इसको काश्त कर रहे हैं। और ये मतलब कि सराई पनीरी है, कोई गोला है। पाकिस्तान में अमरूद की काश्त के लिए मिसाली माहौल मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान अमरूद पैदा करने वाले 10 बड़े ममालिक में शामिल है, जो गर्म, मरतूब मगर खुश्क मौसम और अच्छी तरह से खुश्क होने वाली रेतली गोंद के माहौल से भरपूर है। मगर हमारा जो अमरूद है ना, जहाँ भी जाता है, हमारी अपनी मार्केट में या दूसरी कंट्री में, इसको बहुत पसंद करते हैं। हमारे शरकपुर का अमरूद एक तो फल बहुत खूबसूरत है, उस पर खूबसूरती और साइज़ और जायका वो बहुत अच्छा है, मीठा भी है और साइज़ भी उसका ठीक है। अमरूद के पत्ते बतौर हर्बल चाय और पत्ते के अर्क को बतौर ज़मीमा इस्तेमाल करते हैं। अमरूद के फल हैरत अंगेज तौर पर एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर से भरपूर होते हैं। इसका ना जायका जो है ना वो कमाल का है, और उसके साथ साथ ये सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसको खाने वाला, इस्तेमाल करने वाला बंदा कई बीमारियों से छुटकारा लेता है, उसको उसके कई बीमारी नहीं आती। दूसरे नंबर पे वो ये खून बहुत ज़्यादा पैदा करता है, तो इसके साथ साथ बाकी भी इसकी इफादियत बहुत है। पाकिस्तान शुमारियात ब्यूरो के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2010 से 2019 तक पाकिस्तान की अहम मार्केटों में अमरूद की औसत कीमत फ़रोख्त में बढ़ने का रुझान मौजूद रहा। औसत फ़रोख्त कीमत 2010 में 805 पाकिस्तानी रुपए फी 40 किलोग्राम से 2019 में 2300 पाकिस्तानी रुपए फी 40 किलोग्राम रही। और हमने इसको बड़े शौक से मतलब कि पाला है, तो
बड़ा मतलब मुनाफा बख्श ये काश्त है। साल में ये तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए तक ये फ़ी एकड़ तकरीबन इसकी इनकम है। 1 एकड़ से आप आमदन तकरीबन आप ये कह लें कि 2 लाख से 5 लाख तक। जनूबी एशियाई मुल्क आला मयार के अमरूद उगाता है, जो बरतानिया, अमेरिका और चीन समेत कई ममालिक को बरामद किया जाता है। ताहम पाकिस्तान की अमरूद की सनत सालों से कम पैदावार, पौधों की बीमारियों और कीड़ों के मसले का सामना कर रही है। इसको एक वायरस है वो अटैक करता है इस पे, तो उससे एक सुंडी सी बन जाती है, तो वो अमरूद के फल को ख़राब कर देती है। तो उसके लिए हम स्प्रे वगैरह करते हैं। चीन में ये भी तिजारती मकसद के लिए अमरूद की ज़मानत देने का बेहतरीन तरीका है। हम उन्हें किसी भी वक्त अपनी टेक्नोलॉजी फराहम कर सकते हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान पैदावार में इजाफे के लिए ताउन की बहुत बड़ी गुंजाइश मौजूद है। पाकिस्तान शुमारियात ब्यूरो यानी PBS के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2018 में पाकिस्तान में अमरूद की औसत पैदावार 9.03 टन फी हेक्टर थी। ताहम हमारे जम प्लाज़म रिसोर्स नर्सरी में काश्त किए जाने वाले अमरूद की पैदावार तकरीबन 45 से 60 टन फी हेक्टर तक पहुंच सकती है। इसलिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अमरूद की औसत पैदावार में बेहतरी की गुंजाइश बाकी है। पाकिस्तानी किसान मसला हल करने के लिए चीनी बीज दरामद करते हैं। एक हमारे यहाँ किस्म आई है चाइना गोला, वो बड़ा ज़बरदस्त है, उसकी आमदनी इससे भी ज़्यादा है। अगर हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं तो ये डबल हो जाती है। जिस तरह चाइना गोला पाकिस्तानी किसानों के लिए फ़वाइद लाया है, इसी तरह अमरूद की आला इकसाम और पौधे लगाने की तकनीक पाकिस्तान की अमरूद की सनत की तरक्की के लिए फ़वाइद लाएगी। अगर ज़रूरी हो तो हम पाकिस्तान को अपने मुल्क की जदीद टेक्नोलॉजीज़ फराहम करने के लिए तैयार हैं, ताकि हम एक दूसरे से सीख कर सनत की मजबूत तरक्की को फ़रोग दे सकें। नाज़रीन, इस मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं CEO ऑफ डिलाइट्स फूड इंडस्ट्री जनाब मोहम्मद यासीन साहब। जी, हमने देखा कि इस वक्त पाकिस्तान में अमरूद की काश्त में कुछ मसाइल दरपेश हैं, तो कीड़ों को ख़त्म करने और बीमारियों के इंसदाद के लिए पाकिस्तान को कौन से इक़दामात उठाने की ज़रूरत है? तो ये गुज़िश्ता कई सालों से इसकी जो फसल है उसको सही तरीके से जो जदीद टेक्नोलॉजी के हिसाब से तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों वगैरह का जो है ना अटैक हुआ, जिसकी वजह से इसकी फसलों में कोई पैदावार में कोई खादर का इजाफा नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ इसकी जो ख़ास तौर पे जो इससे इसके इलाज के लिए या इसकी के लिए जो जदीद स्प्रे हैं वो उनका एहतमाम करना लाजमी है। पाकिस्तान में अमरूद की पैदावार ज़्यादा नहीं, लेकिन हमने देखा कि इसकी एक्सपोर्ट्स की मालियत काफ़ी बुलंद सतह पर जा पहुंची है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी अमरूद की बरामदी कीमत ज़्यादा है। तो आइंदा क्या पाकिस्तान का कोई मंसूबा है कि जो अमरूद की काश्त या पैदावार को बढ़ाने का? देखें, मुख्तलिफ जो हुकूमती सतह पे इक़दामात तो हो रहे हैं, लेकिन इस लेवल के नहीं हो रहे हैं कि जिस पे हम इसको एक एज ए कमर्शियल एक्सपोर्ट जो है मसनूआत के हिसाब से इसको जो है ना हम लें, क्योंकि ज़्यादातर हमारी तवज्जो वो आम पे ही है। आम को ज़्यादा और कीनों को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, अमरूद को जो है ना इतना ज़्यादा अहमियत नहीं जा रही। लेकिन ये है कि जो ख़ास तौर पे जो हमारे जो हमसाया ममालिक हैं, जिसमें गल्फ़ कंट्रीज जो है ना अरब ममालिक हैं, वहाँ पे इसकी एक्सपोर्ट जो है ना काफ़ी जो है ना हो रही है, जिसकी यानी इसमें बहुत ज़्यादा चांस हैं कि हम इसको और ज़्यादा मालियत के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उस सतह पे इक़दाम नहीं हो रहे हैं।
पाकिस्तान के क्लीन पावर जनरेशन हदफ के मुताबिक सन 2025 तक बिजली की पैदावार में काबिल तजदीद तवानाई का तनासुब मौजूदा 6% से बढ़कर 25% हो जाएगा और सन 2030 तक मजीद 30% हो जाएगा। चीनी कंपनियां साफ तवानाई जैसे विंड पावर को पाकिस्तान में मुतारुफ करवा रही हैं। खासकर श्री गॉर्जेस ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान में बनाए गए विंड पावर प्रोजेक्ट्स के पहले और दूसरे मरहले को अमली जामा पहनाया गया है। आज के खुसूसी प्रोग्राम में हम श्री गॉर्जेस पाकिस्तान विंड पावर कंपनी की कहानी सुनते हैं। थ्री गॉर्जेस विंड फार्म पाकिस्तान लिमिटेड के CFO आदिल अशरफ, जो 4 साल से जायद अरसे से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC के तहत विंड पावर प्रोजेक्ट से मुंसलिक हैं। चाइना थ्री गॉर्जेस यानी CTG दरअसल अमल और तरीक़ाकार के लिहाज से एक बेहतरीन कंपनी है। ये मुलाजमीन का ख्याल रखती है और जहाँ तक विजन और मिशन का ताल्लुक है, ये पाकिस्तान में मौजूद दीगर कंपनियों के मुकाबले में लाजवाब है। आदिल अशरफ थ्री गॉर्जेस सेकंड विंड पावर प्रोजेक्ट में काम करते हैं। जमपेर जिला ठट्ठा सूबा सिंध में कराची से 90 किलोमीटर मगरब में इस मंसूबे को CPEC के तहत फाल तौर पर फरोग देने वाले मंसूबों में से एक के तौर पर नामजद किया गया था। चीनी सदर शी जिनपिंग ने 2015 में पाकिस्तान का सरकारी दौरा किया, जब CPEC का तारीखी प्रोग्राम बाज़ाब्ता तौर पर शुरू किया गया। आदिल अशरफ उस वक्त बहुत मुतासिर और पुरजोश थे। इस तरह 2016 में जब उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी काबिल तजदीद तवानाई कंपनियों में से एक के जरिए CPEC मंसूबे का हिस्सा बनने का मौका मिला, तो उन्होंने फौरन इसमें शामिल होने का इंतखाब किया। इस कंपनी में काम करने के दौरान मैं जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ वो इसकी अमल और पॉलिसियों की पाबंदी है, और चीनी साथियों के नज़्म ज़ब्त ने मुझे बहुत मुतासिर किया। ऐसा महसूस होता है कि मैं पाकिस्तान में एक चीनी कंपनी में काम करने के बाद अपने काम के हवाले से ज़्यादा मतवज्जो और तफसीलात का कायल हो गया हूँ। मेहनत हमेशा रंग लाती है। पिछले साल दिसंबर में आदिल अशरफ को चीन में पाकिस्तानी सफारत खाने और CPEC अथॉरिटी की तरफ से CPEC फेज 1 के मंसूबों में उनकी कीमती शिरकत के लिए CPEC का बेहतरीन मुलाजम नामजद किया गया। ये एक बहुत यादगार मौका था जब मुझे पाकिस्तान में काम करने वाले हज़ारों मुलाजमीन में से मुंतखब किया गया, जिन्होंने पाकिस्तान में CPEC के मंसूबों के लिए काम किया। चीनी सिफारत खाने की जानिब से ये एवार्ड मेरे लिए एजाज़ और तशक्कुर का बायस है। अखबारात में खबर शाया होने पर मुझे साथियों और दोस्तों की तरफ से बहुत पजीराई मिली। ये एवार्ड मिलने के बाद अब मैं अपने कंधों पर ज़्यादा जिम्मेदारी महसूस कर रहा हूँ और मुझे खुद को मज़ीद बेहतर करना है। इस मंसूबे ने तामीर के उरूज पर तकरीबन 800 मुलाजमतें पैदा की। ऑपरेशनल मुद्दत के दौरान इसने तकरीबन 150 मजीद नौकरियां फराहम की, जिनमें इंजीनियर्स जैसे तकरीबन 40 तकनीकी ओहदे और रोज़मर्रा के कामों के लिए तकरीबन 110 सर्विसेज के ओहदे शामिल थे। पाकिस्तानी मुलाजमीन को जिस चीज़ पर फ़ख्र है वो इनाम नहीं था जो उन्हें उनके काम के लिए मिला है। वो जिस विंड पावर प्रोजेक्ट में मसरूफ़ हैं, उसने पाकिस्तान में बिजली की फराहमी और लोगों के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया है। अब तनसीब की कुल गुंजाइश 1,50,000 किलोवाट है। सालाना बिजली की पैदावार 430 मिलियन किलोवाट है, जो तकरीबन एक साल तक 1.5 मिलियन मकामी घरानों की ज़रूरियात पूरी कर सकती है। जहाँ तक मकामी लोगों का ताल्लुक है, इस विंड पावर प्रोजेक्ट की वजह से उनका मयार ज़िंदगी बुलंद हुआ है। बैरून मुल्क बड़े पैमाने पर विंड पावर प्लांट तैयार करना किसी भी तरह आसान नहीं है। जब थ्री गॉर्जेस फर्स्ट विंड पावर प्रोजेक्ट की तामीर शुरू हुई तो ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कोई सामान नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल्स के लिए कोई काबिल एतमाद सप्लायर नहीं था, और यहाँ तक कि पाकिस्तानी मार्केट में तजर्बाकार मकामी लेबर फोर्स भी नहीं थी। मवाद, जदीद आलात और टूल्स चीन से दरामद करना पड़े। बाद में हमने मरहलावार मकामी सप्लायर्स के साथ बात की ताकि उनको पैदावारी सलाहियत
معیار کو بڑھانے اور تعمیراتی مواد تیار کرنے میں مدد ملے جو ہماری ضروریات کو پورا کر سکے۔ سون نے کہا کہ چینی ماہرین نے اس منصوبے کے لیے قابل مقامی کارکنوں کے ایک گروپ کو تربیت بھی دی ہے۔ دوسرے ونڈ پاور پروجیکٹ کی تعمیر کے وقت تک ایک نسبتاً پختہ مارکیٹ قائم ہونے کے ساتھ چین پاکستان توانائی تعاون کو تمام پہلوؤں میں مسلسل اپ گریڈ کیا گیا ہے، جس سے مقامی پاور مارکیٹ کی مضبوط ترقی کو مزید فروغ ملے گا۔ مجھے امید ہے کہ ہم سی پیک کے تحت منصوبوں کی تعمیر کے ذریعے چین کے تجربات، ساز و سامان اور معیارات کو پاکستان لائیں گے، پاکستان کی معاشی ترقی میں اور پاک چین دوستی میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ جیسا کہ اس سال چین اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 70ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے، سون چیانگ نے بھی اس حوالے سے اپنی توقعات کا اظہار کیا۔ پاکستان میں ونڈ پاور پروجیکٹ کی تعمیر سے ہم بجلی کی فراہمی کے مسئلے کو کم کرنے اور پاکستان میں کلین انرجی کی ترقی میں کردار ادا کرنے میں مدد کے خواہاں ہیں۔ ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے ملیں گے۔ خدا حافظ۔